चलिए दोस्तों मिलते हैं ऑर्गेन नैश से। और इन्होंने लिखी हुई जो द मडल हेड नाम की जो 8th स्टैंडर्ड में हम जो पढ़ने वाली पोयम है वो आज देखेंगे। उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I knew a man from Petushki, as muddle-headed as could be. He always got mixed up with clothes. He wore his mittens on his toes, forgot his collar in his haste, and tied his tie around his waist. What a muddle-head was he, that man who lived in Petushki. They told him as he went about, "You've got your coat on inside out." And when they saw his hat, they said, "You've put a saucepan on your head." What a muddle-head was he, that man who lived in Petushki. At lunch he scratched a piece of bread and spread some butter on his head. He put his walking stick to bed, and he stood in the rack instead. What a muddle-head was he, that man who lived in Petushki. He walked up to a tram one day and climbed in very sprightly. Conductor thought that he would pay. Instead, he said politely, "Pardon your begging, Mr. Conductor. I'm off for a week's vacation. I stop you to beg your cram waiter as soon as we reach the station." Conductor got a fright and didn't sleep that night. What a muddlehead was he, that man who lived in Petushki. He rushed into the first cafe. "A railway ticket, please, one way." And at the ticket office said, "A slice of tea and a cup of bread." What a muddlehead was he, that man who lived in Petushki. He passed the man collecting the fares and entered a carriage awaiting repairs that stood on a siding all by itself. Half of his luggage he put on a shelf, the rest on the floor, his coat on his lap, and settled himself for a bit of a nap. All at once he raised his head. I must have been asleep," he said. "Hey, what stop is this?" he cried. "Petushki," a voice replied. Once again he closed his eyes and dreamt he was in paradise. When he woke, he looked about, raised the window and leaned out. "I've seen this town before, I believe. Is it Kharkov? Is it Kiev? Tell me where I am," he cried. "In Petushki," a voice replied. And so again he settled down and dreamt the world was upside down. When he woke, he looked about, raised the window and looked out. "I seem to know this station too. Is it Nalchik or Baku? Tell me what it's called," he cried. "Petushki," a voice replied. Up he jumped. "It's a crime! I've been riding all this time, and here I am where I began. That's no way to treat a man." What a muddlehead was he, that man who lived in Petushki. इंग्लिश एनिमेशन देख लिया, एक्सप्लेनेशन देख लिया। अब चलिए इसी पोयम को हम देख लेते हैं हिंदी में भी। एक्चुअली ये जो पोयम है इसमें जो पेटिश्की नाम का जो वर्ड बार बार, वही गांव है वो रशिया में है। तो द मडल हेड देखते हैं कि मुझे एक ऐसा आदमी पता है जो पेटिश्की से आया था और वो कैसा था, उसका गड़बड़ा सिर था, हमेशा कंफ्यूज ही रहता था। और वो कैसे कंफ्यूज रहता था तो उसके कपड़े भी देख सकते हैं कि उसके कपड़े पहनने का जो तरीका है वो वहाँ से वो गड़बड़ में था। तो जो हाथ में पहनने वाले ग्लोव्स है वो पैरों में पहनता था और जो अंगूठा होता था वो भी तो पहनता नहीं था। ऊपर से उसके सर पर वो पेन लेके घूमता था और बेल्ट की जगह पे वो टाई वहाँ पे लगा के टाई बांध के चलता था। तो ऐसे ये जो आदमी जो पेटिस्की से आया था और पेटिस्किस में रहता था, ये ऐसा अजीब सा आदमी जब बाहर घूमने जाते थे उसके दोस्त लोग उसे देखते थे तो उसे विचित्र बोल जाते थे और बोलते थे, "अरे तुमने ये कोट ऐसे कैसे पहना है और ये हैट ऐसे कैसे पहनी है?" लोग अजीब ही नज़रों से उसे देखते थे लेकिन उसे कुछ नहीं लगता था। उसको बताते भी थे, "तुम्हारे सर पे तुमने हैट नहीं, हैट की जगह पे तुमने सॉसपैन पहन के रखी है।" पर वो कुछ भी नहीं बोलता था। ऐसा था वो आदमी जो पेटोस्क्यू में से
और पेटुस्के में रहता था। अब वो जब ना ब्रेकफास्ट करने बैठता था तो अपने लंच के बारीक 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 टुकड़े, मतलब ब्रेड के बारीक बारीक टुकड़े करता था और बटर को अपने सर के ऊपर, अपने बालों पर लगा कर सॉस पैन उसके ऊपर रख के वो जाता था। जब सोता था तो उसकी स्टिक वो कॉट पे रखता था और फिर अपने आप को एक छोटे से कबर्ड में बिठा के वहाँ पे वो सो जाता था। ऐसा वो आदमी था जो पेटुस्के से आया था। वो भागते भागते जो ट्रैम नाम की जो रोड पे चलने वाली इलेक्ट्रिक बस है उसको पकड़ता था। पकड़ने के बाद तुरंत वो बैठ जाता था। कंडक्टर को ऐसे लगता था शायद इसने ऑलरेडी पैसे दे दिए हैं, बिल टिकट ले लिया है, फिर भी वो पोलाइटली जाके उसको बोलता था। तब ये पागल आदमी उसे बोलता था कि हाँ, मिस्टर कंडक्टर की जगह पे वो किस्टर मंडक्टर बोलता था और बोलता था मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पे हूँ, तो मैं जब उतरूँगा तब मुझे तुम पैसे दे देना। जहाँ पे ये इसको पैसा देना चाहिए, ये लोगों से पैसा मांगा करता था। अजीब सा ये आदमी था। इतना कंडक्टर डर गया उसकी बातों से, क्योंकि मिस्टर कंडक्टर नहीं, ये किस्टर मंडक्टर उसको बोला था। ट्रैम वे की जगह पे ये क्रैम वे बोला था। इसीलिए वो इतना डर गया कि वो रात भर सोया नहीं। ऐसा एक आदमी था जो पेडिस्के से और पेडिस्के में रहता था। यही विचित्र आदमी एक दिन केक लेने के लिए दुकान में गया था। तो कहाँ गया? तो ये रेलवे टिकट जहाँ पे मिलता है वहाँ पे गया और टिकट ऑफिस के पास जाने के बाद उसने उसे बोला कि मुझे टी का स्लाइड चाहिए और एक कप भर के ब्रेड चाहिए। तो वो उसे देखता ही रह गया, ये कितना कंफ्यूज है ये आदमी, और ये आदमी कहाँ से आया है? तो ये आदमी पेटिस्के से आया है। फिर ये चलते चलते बाहर निकल जाता था और एक दिन ये ऐसे ही बैग लेके घूमने के लिए निकला, लेकिन ये ट्रेन में नहीं, जहाँ पे गाड़ियाँ रिपेयर होती है वहाँ पे ये गया और वहीं पे इसने क्या किया, एक डब्बे के जैसा जो रिपेयर करने के लिए रखा था वहाँ पे वो सो गया। और सोने के बाद इसने अपना सामान जो है ऊपर रख दिया और सीट पे आराम से कोट निकाल के अपनी जो सॉस पैन है उसको भी निकाला और बड़े ही आराम से, अब उसने सोचा कि ट्रैवल ही करना है तो मैं इसे यहाँ पे सो जाता हूँ। वो वहाँ पे सो गया। जब वो सोया था तो वो गहरी नींद में सो गया, ऐसे उसे लग रहा था और सच्ची में वो गहरी नींद में सोया था। जब उठा तो उठने के बाद बोला कौन सा स्टॉप आया है, वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा। तो एक आदमी बोला कि ये तो पेटस्की है करके। हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर ये फिर से सो गया। मैं तो अभी यही हूँ, ऐसे सोच के ये सो गया। सोने के बाद उसे लग रहा था कि वो जैसे कि पैराडाइस में जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। फिर वो उड़ गया। उठने के बाद फिर से उसने देखा ये जगह तो मैंने जानी पहचानी सी लग रही है। विंडो में से झाँक के देखा, ये जो एरिया है यहाँ यहाँ पे मैं पहले आ चुका हूँ। ये जो गांव है ये मुझे पहचाना वाला क्यों लग रहा है? ये खारकोव है कि क्यों है? ऐसे गांव के नाम लेने लगा और पूछने लगा, अरे भाई बताओ मैं कहाँ पे आया हूँ? फिर से आवाज़ आया, अरे भाई पेटिस्की में है तुम। वो फिर से सो गया और फिर से सोने के बाद अब वो गहरी नींद में चला गया था। फिर जब वो उठा तो उठने के बाद उसने एक ऐसे आंखें खोली और फिर से विंडो से बाहर देखने लग गया। हे भगवान, अब मैं विंडो से बाहर देख रहा हूँ। लास्ट टाइम में मुझे वो गांव वैसे ही दिख रहा था जैसे मैं बहुत दिनों से इसे जानता हूँ। अब ये स्टेशन भी मेरा जाना पहचाना लगता है। तो ये नालसिंग है कि बाकू है? मैं कहाँ हूँ भाई बताओ, मैं कौन से गांव में हूँ? वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर से आवाज़ आया, अरे भाई बताया ना ये पेटुस्की है करके। तब उसने उठा और जम करके बोला, ये गलत है किसी इंसान को बुद्धू बनाना। मैं कितने टाइम से यहाँ पे बैठा हूँ, सोया हूँ, मेरी नींद भी हो गई, एक नहीं 2 बार नींद हो गई, और ये बहुत बुरी तरीके से तुम मुझे फंसा रहे हो, पेटुस्के में ही मुझे रखे हो, ये गलत है। आप देख सकते हैं ये मॉडल हेड वाला जो आदमी कितना कंफ्यूज है अपनी लाइफ में। ऐसे आप मत होइएगा। तो
इसीलिए अगर आपको ये पोएम पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल को देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए